सपोज करिए आपने एक चार्ज कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, ठीक है ना, इनिशियल चार्जेस लेट्स से कैपिटल Q, and then you connect it with the help of a battery or through a resistor, and you let this charge pass through the resistor. तो ये चार्ज इमीडिएटली फ्लो करना चाहेगा। अगर ये कंडक्टिंग वायर होता तो इमीडिएटली फ्लो करके न्यूट्रलाइज कर देता, दोनों प्लेट्स पे चार्ज जीरो हो जाता। बट देयर इज अ रेजिस्टर एंड रेजिस्टर हैज अ टेंडेंसी ऑफ अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट. What will happen is that now charge will get neutralized. It will flow from left plate to the right plate or right plate to the left plate, whatever is the charge carrier. So generally electrons are the charge carrier. So basically electrons are moving from the left plate, the right plate to the left plate. In the process, the charge is getting reduced on the plates of the capacitor. More and more charge is getting neutralized. And during this transition, resistor plays the role of opposing the current. Okay? And if you apply KCL or KVL in this case, no need to apply KCL because there is no node. If you apply KVL, the potential difference across the plates of the capacitor will be same as the potential difference across the two ends of the resistor. So IR will be equal to Q by C. So after time t, let us say the charge becomes Q. The potential difference is Q by C, and potential difference across the resistor is IR at any time t. So if you write KVL equations and you try to solve for it, you will get some results, okay, which is like quite easy. Only thing is that you should know we will write I as minus dq by dt. Why there is a minus sign? Because the current that is flowing from the left plate, that is I, is equal to the rate at which charge is reducing on the plates of the capacitor. This Q is not building up, this Q is decreasing with time. So we have to write I as minus dq by dt. Is this point clear? Now, if you do the similar analysis, what we did for the charging of a capacitor, in this case, you will get similar results. Not exactly same, but similar results. Okay, so just take this down. सर जब पूरा डिस्चार्ज कर रहा हो तो स्मॉल क्यू को 0 ले लेंगे। हाँ, फाइनली t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा। इनिशियली चार्ज कैपिटल Q है, फाइनली जीरो हो जाएगा। ओके सर। इसमें लिमिट देखो ना कैसे ली है। जब टाइम जीरो था तुमने इनिशियल चार्ज कैपिटल Q लिया है, दिख रहा है? और जब टाइम t हो गया स्मॉल t, तो चार्ज स्मॉल q हो गया।
देख लिया सर। अब देखो इसमें क्या होगा, चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो जो इनिशियल चार्ज था, ठीक है, लेट्स से दैट वाज q नॉट, तो आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट दैट इज rc, charge will be 37% of the initial charge. तो यहाँ पे time constant of the circuit will be defined in some different manner. ठीक है, सिमिलरली अगर तुम करंट को प्लॉट करोगे इन दिस सर्किट, वो भी ऐसा ही ग्राफ आएगा. पर थोड़ा ऊपर करो ना, वो इक्वेशन लिखनी है। और स्क्रॉल डाउन करो। ठीक है, तो इसके कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप लिख लीजिए.
सर हाँ सर आप वो एमीटर और वोल्ट मीटर से नोट्स भेज सकते हो? मैं वही बना रहा हूँ बेटा, भेज देता हूँ। बाकी तुम्हारी ड्रिल जो तुम्हारी मॉड्यूल है ना, उसमें जो दे रखा है दैट इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। अगर तुम उतना भी पढ़ लोगे तो काफी है। नहीं सर, पर वो अपने नोटबुक में बोला था ना कि 3-4 पेज छोड़ देना एमीटर वोल्ट मीटर के लिखने के लिए। हाँ वो मैं भेज रहा हूँ, हाँ सर, ओके वो तो मैं भेज ही रहा हूँ, बट तुम वहाँ से भी पढ़ लेना। दैट विल गिव यू ओके। आइडिया अबाउट। सर हो गया।
ठीक है, लिख लिया सबने ये? ठीक है, तो बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ है। एलिगेंट रिपीट। इनिशियली चार्ज कैपिटल क्यू था, फाइनली क्यू है, ठीक है ना, एट टाइम t. If you substitute the limits and solve for it, you will get this as the result. Charge q as equal to q, capital Q, e to the power minus t by RC. मतलब इनिशियली t इक्वल टू 0 पे चार्ज मैक्सिमम था, q मैक्स था। जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करेगा, चार्ज ऑन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज गेटिंग डिस्चार्ज। ठीक है, दूसरे प्लेट पे आके डिपॉजिट होता जा रहा है। तो व्हाट विल हैपन इज आपका ऐसा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व आएगा। ओके, नाउ दैट सेम थिंग विल आल्सो अप्लाई फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, द करंट। तो आपका जो करंट है वो करंट भी आपका ऐसे डिक्रीज हो रहा है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई हियर? द वैल्यू ऑफ ई इज द इनिशियल potential difference to which the capacitor was charged. This E is the initial potential difference to which the capacitor was charged. ठीक है, तो ये भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन है, ठीक है, 37% फॉल कर जाए। ठीक है, ट्रांजिएंट करंट इफ यू कैलकुलेट यू विल डिफरेंशिएट इट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ क्यू, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। एंड रिमेंबर दैट यू हैव टू टेक इट एज माइनस डी क्यू बाई डी टी, बिकॉज चार्ज इज डिक्रीजिंग विद टाइम। Okay, if you wish to draw the potential difference across the resistor, which is IR, I is decreasing exponentially, therefore potential difference is also decreasing exponentially, and this is same as that of VC. ये VC का भी same ही ग्राफ आएगा। ठीक है, जो ये नोट में दे रखा है that we will do in specific problems, then you will understand. ठीक है, अभी क्वेश्चन करो। This is from HC Verma. आपके पास पूरा संडे है, फिनिश कर दीजिएगा इसको, आरसी सर्किट कि जितने भी क्वेश्चन है एसटी वर्मा में आप ट्राई करिए। जो भी डाउट्स हैं वी विल टेक इट ऑन मंडे। इफ यू डोंट आस्क एनी डाउट्स वी विल प्रोसीड विद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, तो ये चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कैपेसिटेंस दे रखी है तुमको 100 माइक्रोफैरेड, ईएमएफ दे रखा है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस दे रखा है ये। तो टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? आरसी विच इज 200 माइक्रोसेकंड। ठीक है, फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, ये निकल जाएगा आरसी से। Find the time taken before 99% of the maximum charge is stored on the capacitor. So 99% of the maximum charge you have to calculate.